Okay, so as I was saying, since CO2 is polar in nature, so its value of A will be more. Now for the fourth one, the example was CH3, CH2, CH3, then CH3C, CH3, CH2, CH3, then it was CH3, 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 and CH3. So of course, now it is going to depend on the size. Okay. Second point was greater the size, greater will be the value of A. Okay. So we were talking about MT. So syllabus for MT will be chemical bonding, atomic structure, and states of matter. Okay. These three chapters will be your topic for MT, and MT will be on GCR. Okay. Your maths, physics, and bio test will be separately on LMS, but for chemistry, it will be on GCR because we are running behind of syllabus. Next chapter should have been completed by now, but we are still on this chapter. Okay, fine. So now next topic here is van der Waals equation. For van der Waals equation, we know that pressure actual is equal to P plus A n square by V square. This is for n moles. And pressure actual for real gas is now equal to P plus A by V square for 1 mole. This is your pressure correction here. Okay, so now volume actual was equal to V minus V for 1 mole, and V actual was equal to V minus NB. This is for n moles. So now combining this, we can find out, we can derive the van der Waals equation, and that van der Waals equation, we know that for ideal gas, PV is equal to nRT. This is for ideal gas. Therefore, for real gases, it will be P plus A n square by V square, and V minus NB is equal to nRT. This is for n moles, and the equation is for real gas. हमने correction कर दिया, pressure का correction और volume का correction, and this is what we have got. Is it clear? Now at STP. STP means your standard temperature and pressure. Pressure is 1 atm and temperature is 273 Kelvin. So as your temperature is increasing, gas becomes close to ideal gas behavior. Okay, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वैसे वैसे आपके पास जो गैस है दैट इज गोइंग टू शो आइडियल गैस बिहेवियर. एक छोटा सा क्वेश्चन करो. राइट van der Waals gas equation for 5 moles of CO2 gas. Next question. Write van der Waals gas equation for 10 moles of hydrogen gas. Next question. Write van der Waals gas equation for 2 moles of real gas having
negligible molecular size. Write down this. You just simply have to write the gas equation. ओके देखो, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि यू हैव टू राइट डाउन द वैन डेर वाल गैस इक्वेशन फॉर 5 मोल्स ऑफ CO2 गैस. सो ये हो जाएगा P प्लस AN² / V. हमको A का वैल्यू नहीं पता तो हम A के फॉर्म में लिख सकते हैं. नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 5, सो 5 5 25 डिवाइडेड बाई V². ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में V माइनस 5B इज इक्वल टू 5RT. सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि राइट द वैन डेर वाल गैस इक्वेशन फॉर 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस. तो 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस के लिए सिमिलर तरीके से लिखोगे. 10 मोल्स है तो हो जाएगा 100 A डिवाइडेड बाई V². दूसरा ब्रैकेट में हो जाएगा V माइनस 10B इज इक्वल टू 10RT. ओके, तो अगर आप लोगों ने ये लिखा है तो ये गलत है. गलत क्यों है? फॉर हाइड्रोजन गैस वैल्यू ऑफ A कितना होता है? 0 के इक्वल होता है. दिस होल टर्म विल बिकम 0. वी विल हैव प्रेशर V minus 10B is equal to 10RT, which can be written as PV minus 10PB is equal to 10RT. इसको यहाँ पे लेके जाओ. So PV will be equal to 10 कॉमन ले लेना, तो you will have RT plus PV. So this will be your correct equation. Next is your write the van der Waals gas equation for 2 moles of real gas having negligible molar mass. मतलब उनका मॉलिकुलर मास बहुत ही कम है. अगर मॉलिकुलर मास कम है, साइज की अगर हम बात करें, तो साइज कौन से फैक्टर को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वॉल्यूम. वॉल्यूम में से हम बी को माइनस कर रहे हैं. दैट मीन्स बी विल बी इक्वल टू 0 इस केस में, क्योंकि नेग्लिजिबल मॉलिकुलर मास तो उसका वॉल्यूम इतना ज्यादा होगा ही नहीं. सो विल हैव पी प्लस नंबर ऑफ मोल्स इज 2, 2 2 जा 4 A by V². B का वैल्यू 0 होगा तो यहाँ पे सिर्फ V होगा. इट विल बी 2RT. दैट मीन्स PV plus 4A by V is equal to 2RT. और यू कैन राइट डाउन PV is equal to 2RT plus 4A by V. 2 को कॉमन ले लो इसमें से. सो PV is equal to 2RT plus A by V. संपदा मॉलिकुलर मास 0 है. हमने बोला था कि एक तो हम फोर्स, रियल गैस में फोर्स होगा, ऊपर से उसका वॉल्यूम कुछ ना कुछ रहेगा. अब वॉल्यूम अगर ज्यादा है तो मॉलिकुलर मास भी ज्यादा होगा. तो इसमें बोल रहे हैं कि उसका मॉलिकुलर मास, मॉलिकुलर साइज जो है वो बहुत छोटा है. तो साइज अगर छोटा है तो जो भी वॉल्यूम करेक्शन कर रहे हैं उसकी जरूरत नहीं है, बिकॉज आइडियल गैस के लिए हम वॉल्यूम करेक्शन लेते नहीं है. तो उन्होंने बोला कि मास इतना कम है, साइज इतना छोटा है कि उसका कुछ वॉल्यूम का सिग्निफिकेंस नहीं है. वॉल्यूम का सिग्निफिकेंस नहीं है तो इस बी का वैल्यू 0 हो जाएगा बस. तो V माइनस NB जो हम कर रहे थे वो हम नहीं करने वाले हैं. हाँ सॉरी, टू टू भी होगा यहाँ पे. सॉरी सॉरी, 2A/B. ओके.
नेगेटिव साइन कैसे आएगा? अच्छा उधर माइनस में जा रहा है ना, माइनस में आएगा, हाँ सॉरी। दिस विल बी माइनस। Okay. Next is explanation of Z from van der Waals gas equation. Okay. So अगर मेरे को 1 मोल कंसिडर करना है, ओके, फॉर 1 मोल, ये हो जाएगा P प्लस A बाई वी स्क्वायर, N तो बचेगा नहीं, V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। तो अभी हमने बात करा है एट एस टी पी, प्रेशर हमारे पास 1 atm होगा और टेम्परेचर इज इक्वल टू 273 केल्विन। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, गैस विल बी क्लोजर टू आइडियल बिहेवियर। बट अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछूं कि एट एसटीपी गैस कौन सा बिहेवियर शो करेगा, रियल बिहेवियर या आइडियल बिहेवियर, व्हाट विल बी योर आंसर? At STP, what will be the behavior? It will show real gas. अब अगर आप 273 से टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाओगे, then it will become close to ideal gas behavior. So at STP, it shows the real gas behavior. ग्राफिकली अगर मैं इसको शो करना चाहूँ तो ये Z का वैल्यू है, यहाँ पे हम प्रेशर ले रहे हैं, कर्व इस तरीके से आता है। लेट्स से ये टेम्परेचर T1 है, टेम्परेचर बढ़ाओगे आप T2, और टेम्परेचर बढ़ाओगे T3, और टेम्परेचर बढ़ाया तो T4 पे आपको आइडियल गैस बिहेवियर मिल जाएगा। ओके, सो अगर मैं ये बोल दूं प्रेशर ऑलमोस्ट टेंडिंग टू अगर 0 है, मान लेते हैं, तो टेम्परेचर 298 अगर मैं केल्विन ले लूँ तो Z का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1। अगर प्रेशर 0 है, अगर प्रेशर 0 हुआ तब नॉर्मल, बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं है, 298 केल्विन इज नॉट दैट बिग टेम्परेचर, तब वो आइडियल बिहेवियर शो कर सकता है। बट अगर प्रेशर 1 atm लिया हुआ है तो एसटीपी पे वो आइडियल गैस बिहेवियर शो नहीं करेगा, रियल बिहेवियर शो करेगा। सो देन इट विल शो आइडियल बिहेवियर अगर प्रेशर टेंडिंग टू 0 है। अब वेंडर वॉल गैस इक्वेशन को डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में हम स्टडी करेंगे। ओके, पहला कंडीशन में ले रही हूँ लो प्रेशर। मान लो प्रेशर काफी ज्यादा लो है और टेम्परेचर मैंने मॉडरेट रखा हुआ है, टेम्परेचर इज मॉडरेट। ओके, हमको ये पता है सिंस फॉर गैसेस pressure and temperature are inversely proportional। कौन सा लॉ है ये, जल्दी से बताओ। आइडियल गैस लॉज में हमने पढ़ा था ना, जिसमें काफी लॉज पढ़े थे, तो कौन से लॉ में प्रेशर और टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं? यस, इट इज योर चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंगली प्रेशर और टेम्परेचर आपस में इनवर्सली रिलेटेड होते हैं।
अच्छा, अगर मैं बोल रही हूँ कि प्रेशर काफी कम है, सो इन द कंडीशन व्हेन प्रेशर इज वेरी लो, इसका मतलब क्या है? वॉल्यूम विल बी वेरी हाई, बिकॉज प्रेशर और वॉल्यूम भी इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। अगर प्रेशर बहुत कम रखा है तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा। दे आर योर इनवर्सली रिलेटेड। ओके, सो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो वेंडरवॉल गैस इक्वेशन ले रहे हैं दैट इज P प्लस ए बाई वी स्क्वायर है, और दूसरी साइड हम लेते हैं V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। हम 1 मोल के लिए बात कर रहे हैं। अभी वॉल्यूम इतना ज्यादा है, प्रेशर इतना कम है, तो उसमें से कुछ ऐड करोगे उसमें तो उसका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस वैल्यू रहेगा। बट वॉल्यूम इतना ज्यादा हो गया, जैसे मान लो मैं ओशियन ले रही हूँ। ओके, ओशियन में से अगर मैं 1 ग्लास पानी बाहर निकालूंगी तो क्या ओशियन के वॉल्यूम पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, है ना। उसके वॉल्यूम पे हम उसको बहुत नेग्लिजिबल फर्क पड़ेगा। सेम इज द केस, यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो गया है, और उसके बाद भी अगर उसमें से आपको छोटा सा वैल्यू अगर माइनस कर भी दोगे तो उससे कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। ओके, सो यहाँ पे हम बी को नेग्लिजिबल मान सकते हैं। ओके, सो बी इज अ स्मॉल क्वांटिटी which can be neglected। ठीक है, इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं बी को नेग्लेक्ट कर दूं तो मेरे पास आएगा P A बाई वी स्क्वायर, V इज इक्वल टू आर टी। ब्रैकेट ओपन कर दो, पी वी प्लस ए बाई वी इज इक्वल टू आर टी, या फिर मैं लिख सकती हूँ पी वी इज इक्वल टू आर टी माइनस ए बाई वी व्हेन n इज इक्वल टू 1। क्लियर है? नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई आर टी। दोनों साइड्स को मैं अगर आर टी से डिवाइड कर दूं, ये हो जाएगा पी वी बाई आर टी बाई आर टी माइनस ए बाई वी आर टी। पी वी बाई आर टी को हम जेड लिख सकते हैं, ये तो कैंसिल आउट हो गया, बचा 1 माइनस ए बाई वी आर टी। तो अगर प्रेशर बहुत ही कम लिया हुआ है हमने, सो उस केस में z की वैल्यू जो है दैट विल बी लेस देन 1। तो यहाँ से हमको प्रूफ हो गया कि z की वैल्यू इज लेस देन 1, proved, and it will show negative deviation and molecular attraction is the dominating factor। एग्जाम में आया हुआ है इसमें से क्वेश्चंस। ओके, ना अब अगर मैं ये बोल दूं कि T को मैंने इंफिनिटी तक बढ़ा दिया, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया, इन दैट केस 1/T विल बी टेंडिंग टू 0। और अगर 1/T 0 के टेंड हो जाएगा, इसका मतलब है Z विल बी टेंडिंग टू 1। नाउ दैट मीन्स it will show ideal behavior। अब आइडियल बिहेवियर वो शो करेगा। कोई डाउट इसमें? सेकेंड कंडीशन हम ले रहे हैं हाई प्रेशर। हाई प्रेशर और टेम्परेचर हमने रखा हुआ है मॉडरेट। अब प्रेशर बहुत ही ज्यादा हाई है। ओके, तो प्रेशर में अगर आप कुछ भी ऐड करोगे तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो इट विल ऑलमोस्ट बी इक्वल टू टी। तो बस इसी चीज का यूज करते हुए हम फिर से इक्वेशन निकालेंगे। इट विल बिकम
P a बाई वी स्क्वायर को हमको कुछ कंसिडर नहीं करना है, ये हो जाएगा v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी. दैट मीन्स पी वी माइनस पी बी इज इक्वल टू आर टी. और आई कैन राइट डाउन पी वी इज इक्वल टू आर टी प्लस पी बी. नाउ डिवाइडिंग बाई आर टी, I will get PV by RT is equal to RT by RT plus PV by RT. कैंसल आउट हो गया, PV by RT Z हो गया, 1 plus PV by RT. ओके, अब B यहाँ पे किसके लिए है, क्या है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉलिक्यूलर साइज. ये मॉलिक्यूलर साइज के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो क्लियरली मुझे दिख रहा है इस केस में Z का वैल्यू इज ग्रेटर देन 1. ग्रेटर देन 1 है क्योंकि आपने कुछ ना कुछ 1 पे ऐड किया है, तो वैल्यू इज ग्रेटर देन 1. दैट मीन्स इट इज शोइंग पॉजिटिव डेविएशन और रिपल्सिव फोर्सेस विल बी डोमिनेटिंग. नाउ अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं, मतलब टेंडिंग टू इंफिनिटी कर दूं, तो 1/T विल बी टेंडिंग टू 0. इसका मतलब है Z विल बी टेंडिंग टू 1. इस केस में इट विल शो आइडियल बिहेवियर. 1/T 0 से टेंड हो जाएगा के इक्वल होगा, तो ये होल वैल्यू ही 0 के इक्वल हो जाएगी, तो आपके पास सिर्फ 1 बचेगा. तो बहुत ही हाई टेम्परेचर जब आप लोगे तो इस केस में इट विल शो आइडियल बिहेवियर. राइट डाउन दिस एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट. क्लियर गाइस, कुछ बताओ, हाँ या ना, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, लेट मी नो. Okay, third case which we will take here is high temperature. Okay, अगर हाई टेम्परेचर है तो उस केस में क्या कंडीशन होने वाला है. Just give me 1 minute. Yes, third case is high temperature. तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, ओके, टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, सो वॉल्यूम भी काफी हाई होगा. ओके, सो वी कैन बी नेग्लेक्टेड. वी को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं. ओके, अच्छा, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा. काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, कुछ मॉलिक्यूल्स के बीच की अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है मतलब वो रैंडमली ज्यादा मूव कर रहे हैं, और रैंडमली ज्यादा मूव कर रहे हैं तो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा नहीं होगा. सो नो attraction will be applicable. And since attraction applicable नहीं होगा तो A will be negligible. A आपके पास negligible हो जाएगा.
तो इस केस में इट इज गोइंग टू फॉलो पीवी इज इक्वल टू nRT फॉर n मोल्स ऑफ गैस। मतलब आइडियल बिहेवियर शो करेगा अगर आपके पास टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई है, एज P प्लस A बाई वी स्क्वायर, A n स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू P एंड V माइनस एन बी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू B, क्योंकि हमने B को भी नेग्लिजिबल मान लिया है और A को भी नेग्लिजिबल मान लिया है। फोर्थ केस जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं दैट इज एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। ओके, अभी ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज, आपको पता है ए का वैल्यू फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम 0 के इक्वल होता है, सो वी कैन राइट डाउन P V माइनस बी इज इक्वल टू RT। और ये सेम केस हो गया जैसा आपके पास केस 2 है, which is same as केस नंबर 2। तो पॉजिटिव डेविएशन जैसा केस नंबर 2 है, एग्जैक्टली सारी चीजें वैसी ही होने वाली है। ओके फाइन, सो दिस वाज ऑल योर डिफरेंट केसेस फॉर वैन डर वाल्स इक्वेशन। ठीक है, वैन डर वाल इक्वेशन में क्या क्या चीजें डिफरेंट कंडीशंस पे क्या क्या इक्वेशन शो करेगा, दैट यू शुड नो। फाइन, नेक्स्ट टॉपिक इज virial equation of state। ओके, इसका जो मैं डेरिवेशन कराऊंगी वो सिलेबस में नहीं है, ठीक है, सिर्फ एडवांस के लिए है वो, बट जो एंड रिजल्ट आता है इसके डेरिवेशन का दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर बोथ नीट मेन और नीट एंड मेंस। ओके फाइन, अब ये चीजें बहुत एकदम थियोरेटिकल डेरिवेशन है, यू जस्ट हैव टू लर्न इट, इसको सिर्फ लर्न करना है। ओके, सो इन दिस राइट डाउन व्हाट इज वीरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट। It is a generalized equation of the real gas and all other gas equation which can be converted into virial form। ठीक है, इन सबको हम virial form में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बोला कि बहुत सारे गैसेस इक्वेशन रियल गैसेस के डिराइव हुए थे, नॉट जस्ट बाय वैन डर वाल बट बाय अदर साइंटिस्ट आल्सो। तो उन सबको कंबाइन करके एक गैस इक्वेशन बनाया है जिसको हम बोलते हैं वीरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट। So in this form, Z is expressed in terms of power of pressure or 1 upon Vm. Vm is molar mass, सॉरी मोलर वॉल्यूम, 1 मोल के लिए जो भी वॉल्यूम होगा। तो हम Z की वैल्यू को कुछ ना कुछ P का पावर रहेगा उसके रेस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे या फिर मोलर वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में। जैसे Z इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा P, P का पावर 1 है यहाँ पे, 1 प्लस C, कुछ ना कुछ कोफिशिएंट है, बीटा C कोफिशिएंट है, P रेज टू द पावर 2, देन D P रेज टू द पावर 3 एंड सो ऑन, कंटिन्यू चलता रहेगा इन्फिनाइट तक। Z को अगर मैं मोलर वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफाइन करूंगी तो वन ये हो जाएगा 1 प्लस बीटा 1 अपॉन Vm प्लस C 1 अपॉन Vm स्क्वायर प्लस D 1 अपॉन Vm क्यूब एंड सो ऑन, इट विल कीप ऑन गोइंग लाइक दिस। ओके, तो ये सब क्या है, ये कोफिशिएंट है। ओके, दीज आर वीरियल कोफिशिएंट। ओके, घबराने का जरूरत नहीं है, सब कुछ नया नया लग रहा होगा बट जस्ट डोंट वरी,
ये सब एग्जाम में आपसे नहीं पूछेगा, इसका एंड रिजल्ट पूछेगा, तो मैं एंड पे एकदम डायरेक्टली नहीं जाना चाहती हूँ। आप पूछोगे मैम वो कैसे आया, तो वो इस सब तरीके से आया है, एंड एडवांस में फिर भी पूछ लेते हैं। तो फॉर एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू आई एम टेलिंग। सो नाउ वी विल बी डूइंग conversion of van der Waals gas equation into virial form. We have P plus A by Vm स्क्वायर वॉल्यूम होता है, उसको अब हम मोलर मास के रेस्पेक्ट में लिखेंगे, मोलर वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में लिख देंगे बस। Vm माइनस बी इज इक्वल टू आर, एंड हमको पता है Z इज इक्वल टू PV बाई RT होता है। ओके, सो दिस कैन बी रिटन एज P plus A by Vm स्क्वायर RT बाई Vm माइनस बी। तो इसको हम राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में ले गए। अब हम क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई बाई Vm। Vm के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या बचेगा, P Vm A बाई Vm इज इक्वल टू RT Vm माइनस B और Vm। This is what we are going to get. Next we are going to do is dividing by RT. ये हो जाएगा P Vm by RT plus A by Vm RT is equal to RT by RT Vm minus B Vm। RT RT यहाँ पे कैंसिल आउट कर दो, ये P Vm by RT आपके पास Z के इक्वल हो जाएगा। ओके, ये हो गया हमारे पास, इसको राइट हैंड साइड में लेके चले जाओ, तो यू विल हैव Vm डिवाइडेड बाई Vm माइनस B माइनस A बाई Vm RT। ठीक है, अब इसके बाद बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं, मैथमेटिकल इंटीग्रेशन और काफी सारा कैलकुलेशन होएगा, एंड उन सब कैलकुलेशन का यूज करते हुए वी फाइंड आउट दैट ये सेकंड कोफिशिएंट था वीरियल इक्वेशन, जब हम लिख रहे थे z इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा 1 अपॉन Vm एंड सो ऑन, और z का वैल्यू जो हमने लिखा था 1 प्लस बीटा p प्लस CP2 एंड सो ऑन। तो हम इस इक्वेशन को उस टर्म में लिखते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, मैथमेटिकल फॉर्मूला, वो है कि अगर आपके पास 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर माइनस 1 है, देन इट इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, नहीं सॉरी नॉट 2, प्लस एक्स क्यूब टिल एक्स इंफिनिटी तक जाएगा, जो भी आपके पास वैल्यू आ रहा है। तो z को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस b बाई Vm प्लस b स्क्वायर बाई Vm स्क्वायर प्लस b क्यूब बाई Vm क्यूब एंड सो ऑन। z को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, आपको जरूरत नहीं है ये याद करने की या डिराइव करने की, यू शुड जस्ट नो कि हम किस फॉर्म में लिख रहे हैं। तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया है, माइनस हमारे पास है a बाई Vm RT। Now this can be written as 1 plus b minus a by RT। सब में से मैंने स्टार्टिंग के दो में से 1 अपॉन Vm कॉमन ले लिया, तो मेरे पास ये बचा, प्लस b स्क्वायर बाई Vm स्क्वायर प्लस b क्यूब बाई Vm क्यूब, और जो हमने लिखा हुआ है ये यहीं पे। तो हमने क्या किया, ये वाला जो है एंड ये वाले जो है, इसमें से 1 अपॉन Vm, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया सब में। ठीक है, मैं सब में से मल्टीप्लाई करके दिखा नहीं रही हूँ, बट हमने इसको सब में मल्टीप्लाई सब में इसका इसको कैंसिल आउट करने के लिए इसका उल्टा हमने सबके साथ मल्टीप्लाई किया है, बट वो हमको भी करने की जरूरत नहीं है। तो हमको बस अल्टीमेटली यही देखना है कि यहाँ पे मुझे मिला है b माइनस ए बाई आर टी, एंड दिस b माइनस ए बाई आर टी, यही हमको लास्ट में इक्वेशन चाहिए था, और इसी का हम यूज करेंगे। Anyways, this is not going to come in exam, so please don't worry and don't panic कि ये क्या हो रहा है। अब मैं इस इक्वेशन को इसके साथ अगर
यहाँ पे रिलेट करना चाहूँ, जो स्टार्टिंग में मैंने ये बीटा वाली वैल्यू लिखी थी, बीटा, तो ये बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, इसके। सो बीटा विल बी इक्वल टू b माइनस a बाई आर टी। यही मेरे को चाहिए था ऑल टुगेदर, दैट इज द मेन इक्वेशन। ओके, ओके। सो इन सारे वैल्यूज को नेग्लेक्ट अगर हम करें, नेग्लेक्टिंग ऑल दी हायर पावर्स ऑफ वीएम, वीएम स्क्वायर वीएम, क्योंकि जैसे जैसे डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये वैल्यू घटती जाएगी, तो हम उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। ओके, सो नेग्लेक्टिंग हायर values of Vm, we will be only left with z is equal to 1 plus b minus a by RT and 1 minus Vm। और अगर आइडियल बिहेवियर शो करना है किसी गैस को, फॉर आइडियल गैस z शुड बी इक्वल टू 1। अगर z 1 के इक्वल यहाँ पे है आइडियल बिहेवियर के लिए, तो इसका मतलब है 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो आई हैव b माइनस a बाई आर टी 1 अपॉन Vm इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से मुझे ये पता है कि वॉल्यूम तो कभी जीरो नहीं हो सकता, दैट मीन्स 1 अपॉन Vm कैन नेवर बी इक्वल टू 0, बट b minus a by RT can be equal to 0, which can be written as b is equal to a by RT, and this b is actually your TB temperature, a by, like not like this, टेम्परेचर को इधर लेके जाओ तो यू विल हैव T is equal to a by RB, और इसको हम TB से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज योर बॉइल्स टेम्परेचर। ओके, पूरी कहानी में जो चीज आपको ध्यान रखना है वो सिर्फ ये एक इक्वेशन। इज इट क्लियर? बाकी अगर ऊपर का समझ में नहीं भी आ रहा है, दैट इज परफेक्टली ओके, बिकॉज उसमें कुछ ऐसे मैथमेटिक्स यूज किया गया है जो आप लोगों को नहीं पता है, थोड़ा हायर लेवल का मैथमेटिक्स है। सो दैट इज लाइक परफेक्टली ओके इफ यू डिडंट अंडरस्टूड। बस आपको ये ध्यान रखना है कि TB is equal to A by RB होता है, that is very important, and this temperature is known as Boyle's temperature. This equation is the only thing which is required here. Clear? तो बॉयल्स टेम्परेचर पे क्या हो रहा है इधर एग्जैक्टली आप लिख लो, एट बॉयल्स टेम्परेचर जो भी इफेक्ट हमने प्रोड्यूस किया, क्योंकि रियल गैस में प्रोड्यूस हो रहा है बाय मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन से कुछ ना कुछ फोर्स प्रेशर जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो जो भी वैल्यू इफेक्ट मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के साथ आ रहा है, एंड जो भी वैल्यू मॉलिक्यूलर साइज से आ रही है, दे हैव कैंसल्ड ईच अदर, दोनों वैल्यू ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया है, एंड दस गैस फॉलोज आइडियल बिहेवियर। क्लियर? तो टीबी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन लिख लो, टेम्परेचर at which gas follows ideal gas behavior for large range of pressure is known as Boyle's temperature. मतलब graphically if I want to draw it, यहाँ पे प्रेशर है, यहाँ पे ये Z का वैल्यू 1 है, तो इसके लिए काफी टाइम तक जो गैस है आपके पास वो आइडियल बिहेवियर शो करेगी।
टेम्परेचर एट विच गैस फॉलोज आइडियल गैस बिहेवियर फॉर लार्ज रेंज ऑफ प्रेशर, काफी प्रेशर तक वो आइडियल गैस बिहेवियर शो करेगी, फिर धीरे धीरे डेविएट करना चालू होगा. दिस इज नोन एज Boyle's temperature. So at Boyle's temperature, effect produced by molecular attraction, वही जो हमने, इसको दोबारा मत लिखो, छोड़ो, नॉट रिक्वायर्ड, हमने ऑलरेडी लिख लिया. ड्रॉ करो ये ग्राफ. तो बहुत ही ज्यादा प्रेशर अगर आपने जनरेट कर दिया तो वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, बट काफी रेंज तक, काफी पॉइंट ऑफ टाइम तक इट विल शो आइडियल गैस बिहेवियर. अब जैसे जैसे प्रेशर आप एक्सट्रीमली इंक्रीज कर रहे हो, देन इट विल शो, आप यहाँ पे लिख लो, एट हाई प्रेशर पॉजिटिव डेविएशन. Guys, done? Okay, next topic is liquefaction of gases. Again, one of the important topic for exam point of view. थियोरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है. रियल गैसेस से न्यूमेरिकल्स बहुत कम आएंगे, जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे आपके वो आइडियल गैस में मोस्टली कवर होगा, रियल गैस में काफी कम न्यूमेरिकल्स यू विल ऑब्जर्व. सो नेक्स्ट इज लिक्विफिकेशन ऑफ गैस. ओके, सो हियर कौन कौन किस कंडीशन पे गैस आपके पास लिक्विफाई होगा. मान लो मेरे पास एक सिलेंडर है, यहाँ पे पिस्टन है और इसके अंदर गैस भरी हुई है, फिल्ड विद गैस, ठीक है, जो कि वेपर फॉर्म में है. ओके, और पिस्टन आपका मूवेबल है. अब अगर मैं ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज करूंगी तो पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा. ओके, जिसकी वजह से धीरे धीरे वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होगा गैस का. ओके, और अगर आप पिस्टन पे एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज करोगे, वॉल्यूम और डिक्रीज होता जाएगा, तो अल्टीमेटली जो वेपर्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड फॉर्म में. ओके, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, सिलेंडर को हमने एकदम बहुत ही ज्यादा पिस्टन प्रेशर लगा के, अब जो यहाँ पे हमारे पास बचा वो बचा सिर्फ लिक्विड, एंड दिस इज नोन एज लिक्विफिकेशन ऑफ गैस. इज इट क्लियर. अगर मैं टेम्परेचर कांस्टेंट रख रही हूँ, उसमें जैसे जैसे एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ से बढ़ रहा है, वैसे वैसे आपके पास गैस क्या होने वाली है, लिक्विफाई हो रही है. ओके, धीरे धीरे थोड़ा सा कुछ पर्टिकुलर टाइम पे थोड़ा लिक्विड फॉर्म आएगा, थोड़ा और लिक्विड फॉर्म आएगा, अल्टीमेटली इट विल ऑल बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. सो यहाँ पे हो क्या रहा है, बेसिकली more molecules are coming together and molecular attraction will increase. अब अगर यहाँ पे लिक्विड आ गया है और मैं और एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज करूं, तो क्या वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा, क्या वो आप सॉलिड में और प्रेशर अप्लाई करने से क्या वो सॉलिड हो जाएगा. नहीं, इट विल नॉट कन्वर्ट इनटू सॉलिड. रीजन क्या है कि अगर हम
प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है, ये इनवर्स रिलेशन है, बट इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर गैसेस। अब लिक्विड के लिए एप्लीकेबल नहीं है कि आप लिक्विड में प्रेशर इंक्रीज करो तो वॉल्यूम और कम हो जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, ग्राफिकली अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ, मान लो ये प्रेशर है और ये हमारे पास वॉल्यूम है। एट सम पर्टिकुलर टेम्परेचर लिक्विफिकेशन ऑफ गैस इस टाइप का कुछ कर्व फॉलो कर रही है। लाइक स्टार्टिंग में तो लेट्स से दिस इज योर गैस ए एट टेम्परेचर T1। ओके, तो जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं, इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, प्रेशर बढ़ रहा है हमारा, है ना। तो आइडियल गैस बिहेवियर गैसेस के लिए जो पी और वी का रिलेशन होता है वो फॉलो करेगा। ओके, अब उसके बाद कुछ टाइम के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, बट अगर उसके बाद भी आप गैस का इंक्रीज कर रहे हो दिस थिंग, देन वो क्या शो करने लगेगा, आइडियल गैस बिहेवियर, यहाँ तक। ठीक है, अब मैं टेम्परेचर और बढ़ा दूँ, लेट्स से मेरा टेम्परेचर T2 हो गया, तो ये जो स्टैग्नेंट वाला कर्व है वो कम हो जाएगा। अगर हमने और टेम्परेचर इंक्रीज किया तो स्टैग्नेंट वाला और कम हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली देयर विल बी अ टेम्परेचर एट विच गैस विल फॉलो एन आइडियल बिहेवियर। अगर ये पॉइंट ए है, दिस इज पॉइंट बी, सी एंड डी, तो ए एंड बी के कर्व तक हमारे पास क्या प्रेजेंट है, गैस प्रेजेंट है। बी एंड सी के कर्व में हमारे पास गैस प्लस लिक्विड है। यहाँ पे स्टिल कुछ गैस मॉलिक्यूल्स लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं, बट ज्यादा वॉल्यूम में, वॉल्यूम धीरे धीरे कम होगा, बट प्रेशर में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आ रहा है। और सी और डी आपके बीच में जो कर्व है वहां पे कंप्लीटली क्या फॉर्म हो जाएगा, लिक्विड। ओके, यहाँ पे अगर आप प्रेशर बढ़ा भी रहे हो, वॉल्यूम अब कांस्टेंट ही रहेगा, इसलिए बहुत ज्यादा वॉल्यूम में चेंज नहीं दिख रहा है। यहाँ पे स्टिल प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा, क्योंकि स्टिल यू हैव सम गैसेस। इस केस में भी प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा। इज इट क्लियर? सो देयर विल बी अ पॉइंट यहाँ पे, एक कर्व में, मान लेते हैं ये T3 कर्व है, जहाँ पे सिर्फ एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए आपको स्टैग्नेंट वाला कर्व दिखाई दे रहा है। इस पॉइंट को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ओके, मतलब यहाँ पे इस टेम्परेचर पे जस्ट पॉइंट बचा है, यहाँ पे इतना कर्व था, यहाँ पे इतना कर्व था, यहाँ पे एक पॉइंट सा बचा है बस, तो इसीलिए उस पॉइंट को हम बोल दे रहे हैं यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट के बाद अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, ओके, सो इट विल गेट कन्वर्ट इनटू आइडियल गैस बिहेवियर। इज इट क्लियर? तो इसको आप टीसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे T1 सबसे कम है, देन T2 इंक्रीज हुआ, T2 के बाद हमारे पास TC आया, देन हमारे पास T4 है। ओके, अगर मुझे गैस को लिक्विफाई करना है, क्योंकि एक बार अगर आइडियल बिहेवियर शो करने लग गया, गैस T4 पे पहुंच गया, तो आप लिक्विफाई नहीं कर सकते हो, बिकॉज आइडियल गैसेस में देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, तो वो एक दूसरे के पास आएंगे ही नहीं, आइडियल गैस को हम लिक्विफाई कर ही नहीं सकते। तो T4 पे गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। But TC is the maximum temperature for liquefaction। मतलब इसके ऊपर गया तो लिक्विफिकेशन इज पॉसिबल नहीं, यहां से यहाँ पे गैस कैन बी लिक्विफाइड। ओके, लिखो ये।
ओके, तो जो भी यहाँ पे अभी एक्सप्लेन किया उसको बस लिख लो वर्ड्स में. ओके. ओके, सो थॉमस एंड्रयूज, he was a scientist, saw the effect of changing pressure on gases at particular temperature, and he found that on increasing the pressure, gas shows the tendency of liquefaction. On increasing temperature, he found that tendency of gas for liquefaction decreases, and on continuously spelling and continuously increasing temperature, a point comes where there is no distinction between liquid एंड गैस. तो इस पॉइंट पे हमको नहीं पता चलेगा कि वो लिक्विड है एग्जैक्टली कंप्लीटली या फिर गैसियस फॉर्म में कंप्लीटली. ओके, देयर इज नो डिस्टिंक्शन. कोई हम डिस्टिंक्ट पॉइंट नहीं बता पाएंगे कि कहाँ तक लिक्विड है और कहाँ तक गैस है. एंड दिस पॉइंट is known as critical and pressure volume temperature corresponding to this point are known as critical pressure, critical volume, and critical temperature. Is it clear? So यहाँ से हम define करेंगे critical temperature. So it is the maximum temperature above which gas cannot be liquefied by applying any pressure. But कितना भी प्रेशर लगा लो, उस पॉइंट के बाद, उस क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद आप लिक्विफाई नहीं कर सकते. बट below which it can be liquefied. इस क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे आप गैस को लिक्विफाई कर सकते हो. Then there is critical pressure. For critical pressure, volume occupied, sorry, for critical pressure, it is
the minimum pressure required to liquefy. ओके, मिनिमम इतना प्रेशर आपको लगाना ही पड़ेगा गैस को लिक्विफाई करने के लिए. देन वी हैव क्रिटिकल वॉल्यूम. Volume occupied by 1 mole of gas at critical pressure and critical temperature is known as critical volume. So critical pressure और critical volume और critical temperature पे जो भी volume occupy कर रहा होगा गैस, that will be known as your critical volume. लिखो ये. ओके, सो ये आपके पास डिफरेंट डिफरेंट, आपको एक गैस के लिए क्रिटिकल प्रेशर गिवन है और क्रिटिकल टेम्परेचर गिवन है, और आपसे पूछ रहा है कि कौन कौन से केसेस में लिक्विफिकेशन ऑफ गैस इज पॉसिबल. देखो इधर, प्रेशर के लिए मुझे क्या चाहिए, मिनिमम प्रेशर, मतलब मुझे इतना मिनिमम रखना है, और टेम्परेचर के लिए ये मैक्सिमम है. इससे ज्यादा होगा तो लिक्विफिकेशन पॉसिबल नहीं है. ए केस में मिनिमम 1.5 चाहिए, यहाँ पे 2 है, चलेगा. मैक्सिमम 320 चाहिए, यहाँ पे 300 है. ठीक है, तो ए केस में लिक्विफिकेशन पॉसिबल है, बिकॉज क्रिटिकल टेम्परेचर हियर इज ग्रेटर देन नॉर्मल टेम्परेचर. सेकेंड वाले केस में मिनिमम मुझे प्रेशर 1.5 चाहिए, यहाँ पे 1 है, ये पॉसिबल नहीं है. मिनिमम मुझे 1.5 चाहिए, यहाँ पे 2 है. मैक्सिमम 320 हो सकता है, बट यहाँ पे आपने टेम्परेचर 350 लिया हुआ है, तो अगेन इसमें भी पॉसिबल नहीं है. 1.5 मिनिमम चाहिए, यहाँ पे 1.5 है. मैक्सिमम 320, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, यहाँ पे 310 है, मतलब पॉसिबल है. ए और डी में पॉसिबल होगा लिक्विफिकेशन. मिनिमम हमको चाहिए 1.5, मैक्सिमम 350 तक जा सकता, सॉरी 320 तक जा सकता है, यहाँ पे भी 320 है, मतलब ई में भी लिक्विफिकेशन पॉसिबल है. तो आंसर हो जाएगा आपका ए, डी और ई. क्लियर एवरीवन?
Okay.